Namaskar. On behalf of Indira Gandhi National Open University, Regional Center Kolkata, I welcome you all in this induction meeting for Master Degree program. Those learners who have enrolled themselves under July 2023 session. I, Dr. Ajay Behera, Assistant Regional Director, welcome you personally in this e-induction meeting. Friends, it is really too late to start because almost 6 months have gone out of one academic year. It is really a matter of concern, but as per the university norms, we have to move, and as because the last date for admission was extended till October 20th, so we could not, November 20th, we could not complete the admission process timely. As a result, we had to, and after that we had to start our examination. So that is why the induction meeting is really delayed for a period of at least 2-3 months. Anyhow, today we are here to interact you all. The program name is induction meeting. Dear learners, as you know, Indira Gandhi National Open University is a central university established by the Act of Parliament in the year 1985. It has been offering different programs starting from master degree, bachelor degree, PG diploma, certificate program, awareness program, and PhD. So at the graduation and master degree level, the number of learners are quite high. Among the learners, some are in-service teachers, in-service holders, in-service person, and some are fresh learners. At master degree, some learners joined or enrolled themselves in master degree program after completion of their bachelor degree from different state university or central university through face-to-face mode or regular mode or conventional mode. Now they have switched over from conventional to ODL mode, open and distance learning mode. In this context, they need to be inducted about the rules, regulations, about the provision, about the system, about the channels through which they have to go to complete their program very smoothly. As I have already mentioned that we are already delayed by 6 months. 6 months have gone. In coming 6 months, 1 month will be for examination from June 2024. Remaining 5 months. This is January session, January 2024, and obviously there will be another 4.5 months. So friends, you must complete your all academic activities during this period to have manage your time properly to complete all the assignments, all the practicum, all the projects, etc. We will discuss now. So friends, giving a brief discussion, brief introduction, I was telling that IGNOU Regional Center was established by the Act of Parliament. IGNOU, Indira Gandhi National Open University was established by the Act of Parliament and in the year 1985, and the Regional Center Kolkata was established in the year 1988.
After 3 years of establishment of university, regional center Kolkata established, and in the premises of Vikas Bhavan, North Block, 4th floor. At present, there are more than 334 programs being offered by IGNOU, and under Regional Center Kolkata, almost 90% programs are activated. So, friends, there are bachelor degree, 19 bachelor degree program, 13 bachelor degree honors program, 65 master degree program, 65 plus 4, 69 master degree program, postgraduate diploma program for 65, diploma program 27, postgraduate certificate program 14, certificate program 79, awareness program 3, online program 45. All total, around 334 programs are being offered by IGNOU, and under Regional Center Kolkata, approximately 90% programs are activated, and all are being offered from July 2023 session. Recently, IGNOU has started 4 years undergraduate program as per the new National Education Policy 2020. So now IGNOU will offer 4 years undergraduate program from January 2024 session. So friends, in this context, you have taken admission, you have enrolled yourself for July 2023 session, and you have accessed the website of IGNOU, www.ignou.ac.in, where IGNOU homepage is there. You have successfully registered, then submitted your application, the application was processed, then confirmation letter was sent to your email ID. After confirmation of admission, enrollment number was allotted, and finally your identity card was generated. You may have downloaded your identity card. This is more important when you will be visiting your study center, when you will be visiting your regional center, when you will be visiting to your headquarters in case of emergency or in case of appearing your examination. So for all purposes, your identity card is really required. Friends, the first academic activity you have to do is to attend the academic counseling session. We are going to start academic counseling sessions in this month only, after 15th of January, because our examination is going on. 9th will be the last date, and after that we will be starting our academic counseling session for all the master degree program, bachelor degree program. So as a learner, you have to visit our IGNOU website, RC Kolkata website, to know on which date, at what time IGNOU will be conducting the online counseling sessions. Of course, you will be getting an email on your registered email account about the class and link through which you can join your class. Friends, first of all, I would like to request all the listeners, all the learners to visit our website to check the registration status. In the registration status, you can on the screen you can see that our website URL is
ignu.ac.in, and website of RC Kolkata is RC Kolkata, double TH here, kolkata.ignu.ac.in. Here we will upload all kind of schedule, timetable, link to join the class. Apart from that, we will be sending our one email to your account also. Okay. So first of all, you should check your registration status to know about any to know about the details of your registration. The registration status contains your name, your enrollment number, medium of instruction, then your father's name or guardian name, your address, your mobile number, your email ID. More important is your courses, that is papers, subject and courses. Okay. So all need to be verified. Sometimes you may have not seen properly about the registration details, but now time has come to recheck your registration status. Download your identity card and note the validity of your program. The master degree programs are of 4 years duration, maximum 4 years duration, and minimum 2 years duration, as it was argued. You can complete your master degree within the stipulated time of 2 years, and if for any reason if you could not complete your program, another 2 years are in your hands to complete your program. After that, I request you all to download prospectus. I know you may have downloaded the prospectus at the time of the admission, but again I request you all to download the prospectus, and not only download but to go through the prospectus. Initial 5-7 pages university information are there, and university rules are there at the end of the towards the end of the prospectus. So for to know the details of the university rules, you are requested to go through the prospectus to understand how university works. University rules and regulations are mentioned towards the end of the prospectus, very categorically mentioned rather. Whatever doubts in your minds in the coming days may occur will be solutions over there. So, dear learner, I personally request you to go through the prospectus and particularly the university rules sections to understand what exactly the university rules are there for different purposes. Till date, I think you have received your study materials. If you have not received your study materials, you can visit our website. There, a link is there, egyancourse.ac.in. You can click on the eGyan course link to get your desired or required or needed study material. Another link I would like to share with you, that is Gyandhara. It is an interactive radio channel to listen the different courses, different program, the teaching that the academic counselor teaches over here through radio. You can download or you can log in. Then there is a television 24 hours dedicated television channel called as Gyan Darshan. Gyan Darshan, gd.ignuonline.ac.in. You can visit here through online, or you can Gyan Darshan. You can watch your TV at home or at workplace. You can just put the channel Gyan Darshan again, and you can watch. There are some recorded videos and there are some live videos are there. So you can understand different schedule over there also. The university library is also there. Library opsc.ignu.ac.in. You can download different research articles, research material, reference material from here. So
these things need to be visited by you. Uh, that is why I personally requested you and again request you to go through all these things so that you can understand how IGNOU works. Okay. Then another thing is in eGAN course you can download your program guide. Each program is having one program guide separately. Like MEG for Master of Arts English program guide is there. In that program guide your syllabus is there, the different activities, assignments, when to submit the assignments, other things you can download from there. And you can understand also, you can note down the last date, how to submit the assignments, where to submit the assignments, how to conduct the project, where to conduct the project, how to submit the project. So many things are there in the program guide. Apart from the program guide, another thing is internship or project and practicals. Some programs, master degree programs are having project component, practical component, internship component. So as per the program, need of the program, you have to complete the required internship or project or practical or all three. Whenever the practical component is there, the practical classes, practical examination will be through face-to-face mode. It will be conducted at the study center or conducted by the regional center where the program is available. Then the counseling. Counseling means classes. All counseling classes or counseling schedule will be conducted at the through online, which will be ultimately given a link. I mean, we will be giving link to all of you to join the counseling session. Counseling is of two types. One is face-to-face counseling, another is online counseling. In online counseling, you will be joining the link. The teacher will be there at the other end. He will be discussing on the issues or problems faced by you, and after that you may ask the question or you may ask the query. You can clarify your query after putting the question to the academic counselor. And another is face-to-face counseling conducted at the study center. No practical will be conducted through online, but it will be conducted through offline. Offline means face-to-face. All practicals will be conducted through offline only. You have to visit the study center to attend the classes. Okay. Then, for example, I was giving you the MEG program. In MEG program, Master of Arts English, in English program, there are 8 papers. For example, 8 papers. So, one paper is equal to 100 marks. For example, one paper is equal to 100 marks. Not for example, it is there 100% of percentage. It is actually percentage. Out of 100% of one paper, that is paper means course. We call course. Normally, it calls you know as paper. Subject English, paper हम कोर्स बोलते हैं. And in that course 30% marks are internal and 70% marks are external. 30% internal marks will be given in terms of writing assignments. There will be a question paper available in the website. You have to download it, go through the study material, read it, write the answer, submit the answer at the your concerned study center. It will be evaluated and marks or grade will be uploaded in the website. This is 30% mark internal. 70% mark, there will be examination, annual or semester examination, and you have to appear the examination for 70% mark.
So after completion of examination, your answer script will be evaluated at IGNOU Regional Evaluation Center, and marks will be sent to the headquarter Student Evaluation Division, and it will be updated in the website, and you can check your marks in the grade card, and of course in the term and examination result. So both assignment marks or grades and term and examination marks or grades are updated in the grade card, and for term and examination it will be reflected in both in the grade card and at the term and examination result link. Okay. So university conducts examination twice in a year, one in December and another in June. There is no supplementary, there is nothing. Till the validity of your program enrollment, you can appear your examination. You may appear one paper in first semester, one paper in after completion of the first year, remaining on the second year, provided the papers examination dates are not overlapping. So please mind that you must appear your examination keeping in mind the validity of your program. After validity completion of your validity, you will not be allowed to appear your examination, and your program will not be completed smoothly. That is why I request you all, please complete your program within the stipulated time. So, dear learner, you have to do three things. Number one, attend your classes. Number two, write your assignments and submit it at the study center. Number three, submit the examination form. For examination form, as I have already told you, examination is conducted twice in a year, in the month of June and December. So for examination, you have to submit your examination form in the month of March or April or September or October. Okay, so you need to submit the examination form. At the time of examination form, if you have the practical component in your program or project component in your program or internship in your program, you have to submit the examination form accordingly. You have to select, you have to pay the fee as per the university norms. So please don't mind to fill up the examination form in time. While submitting your examination form, you must remember about submitting the examination form of the courses meant for practical, project or internship. Otherwise, you will not be allowed to appear your practical examination, appear your project viva voce, appear your internship. Okay? So if you do not appear your examination, you can appear your examination next time, but you have to pay the fee. So friends, all these things are important to know or to remember about the IGNOU system. Another thing is, if you want to transfer your study center from here to another regional center, you can do that. IGNOU is a system, its jurisdiction is throughout India. You can appear your examination any part of the India. This is one case. Second is, if you appear your if you want to appear your examination any regional center, you have to submit your examination form accordingly, mentioning the examination center, so that your center will be allotted.
Friends, another important thing is re-registration. Re-registration means admission in the second year and admission for the second year. For admission, first year admission is done or first semester admission is done, second semester admission is going on, second year admission will be started in the month of April-May 2024, and you can re-register yourself for second year in time. Sometimes it happens your examination will be conducted later on, but your re-registration will be conducted early. So please don't think that I have not appeared my examination yet, but you are asking for second year admission. Yes, our system is like that, because you have to complete your submission of your examination form and complete your re-registration before or during the examination of the first year. So don't be worried, don't be panic कि मेरा तो एग्जाम हुआ नहीं, अभी क्या चल रहा है, ये क्या तरीका है ना, ऐसे नहीं है. हमारा ये सिस्टम है. You can appear your examination as well as appear your that is complete your re-registration in time. Okay, so this is about the system of IGNOU. You have to re-register for second year before or during the examination. So friends, don't be late. If you are in semester pattern, second semester admission is going on, please complete your admission re-registration, and for annual system the admission process will be started in the month of April-May. Okay, this is there. Another important information is simultaneous registration. Friends, as per University Grants Commission norms, a candidate can pursue two programs, different programs, simultaneously with a gap of 6 months. So please, if you are interested, please maintain a gap of 6 months, and then now your 6 months gone, you can get admission in another program from January 2024. January 2024 admission is already started, so you can start selecting your program if you want for simultaneous registration. And the final is, I would like to tell that you are the driver of your own vehicle. You have to study on your own, you have to write assignments on your own, you have to appear your examination on your own. While writing assignments, you must remember, you must keep in mind that the study materials given to you, provided to you, should be read first, then write your assignments. Please don't write the bookish language like अभी तक हमने ये पढ़ा है, आज हम ये पढ़ेंगे. The same sentence is written by the students in the assignments, which is just copying the text from the study material to the assignment. So you will not get good marks. I hope you understand my point. If you write good assignments, then you can score good marks. So this is all about the theoretical part. I am just briefing the points again through the PPT. The structure of the courses. First is a program like MEG, MPS, MSO. These are programs. Papers are called as courses. Paper 1, paper 2, paper 3, which is having one paper code, course code and its title. Blocks means एक कोर्स में 2 ब्लॉक्स हो सकते हैं, 4 ब्लॉक्स हो सकते हैं. वो यूनिट मीन्स एक चैप्टर है वहाँ पे, तो एक ब्लॉक में 4, 5, 6 यूनिट भी हो सकते हैं. नेक्स्ट मैं आपको बोला था कि ई स्टडी मटेरियल्स एंड अदर्स, यू जस्ट सी दिस इज द ई ज्ञान कोर्स लिंक
the home page will be viewing like this, and on the second point from the left, IGNOU self learning material SLM is there. If you click on that, you will be getting one link for getting study material or soft copy of study material. Study methodology जो है मैंने already I have given the clue points is here. Read the program guide first. Read the units very carefully. Note down important points in the margin. Attempt to answer self-check exercises. Write down your answers to the self-check exercises in the blank space in the study material book. That is your self-learning material. Check your answers yourself with the answers given at the end of the unit. Every unit end of the unit, answers of the questions are given. You have to match if how you are performed, how you have answered your questions. You can check the desired answer of your question. Evaluate your own performance, and if not satisfied, revisit the content. This should be the point. This should be the revisit the content so that you can write your answers properly. Academic counseling. There will be no regular face-to-face classroom lectures in your program. Right now, 60% class may be given. Instead, academic counseling sessions. There will be no regular face-to-face like regular face-to-face classroom. Teacher आएगा पढ़ाएगा फिर आप घर में जाके पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है. Our academic counseling session instead, it is a doubt clearing sessions. Counselor will be a guide as an interpreter or एज ए फैसिलिटेटर. वो इंटरप्रेट करेंगे क्या नहीं समझ में आता है, वो गाइड करेंगे आपको क्या आपको समझ में नहीं आता है, क्या एक्स्ट्रा चाहिए था, और फैसिलिटेटर जो आपको एनकरेज करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे. मैं आपको और एक चीज यहीं पे बता देता हूँ कि हमारा जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जिसको स्टडी मटेरियल बोला जाता है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल हम लोग बोलते हैं, तो वो इनबिल्ट टीचर है. और जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं ऐसे ही आप लैंग्वेज जाएंगे तो इट इज डेवलप्ड एंड रिटन वेरी केयरफुली, कि आप उसको समझ में आएगा कि हाँ हमारे कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं. इस तरह के एक पैटर्न इनबिल्ट टीचर्स जो है इसमें है. टू गेट द बेस्ट यू मस्ट केयरफुली रीड योर कोर्स मटेरियल इन एडवांस. आपको काउंसलिंग सेशन ज्वाइन करने से पहले एक बार अगर स्टडी मटेरियल को देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. 50% इन्फॉर्मेशन के साथ जब टीचर के पास जाएंगे तो आपका डाउट जो है वो इमीडिएटली एंड एक्यूरेटली क्लियर हो पाएगा. कई सारे चीजें जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का टूल्स जो है उसमें है, और वो क्या हमारा जो एमलीब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे प्रैक्टिकल्स होता है, प्रैक्टिकल काउंसलिंग के टाइम पे जो बताया जाता है, और कुछ एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है जैसे एमसीए और बीसीए और आपका जो कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स है उसमें सॉफ्टवेयर जो है उसी में ही दिया जाता है प्रैक्टिकल काउंसलिंग कैसे किया जाता है. ये सारे फैकल्टी मेंबर्स जो है किस तरह की ज्वाइन करेंगे और वहां पे जो किस तरह की आपको पढ़ना है वो समझाएंगे. एंड फैकल्टी मेंबर जो है हमारा जो जितने भी एकेडमिक काउंसलर जिनको बोलते हैं हम लोग, तो वो टीचर्स है. इनफैक्ट डिफरेंट कॉलेजेस में वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की तो प्रोफेसर भी है. तो वो जब ज्वाइन करेंगे आप उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते, पूछ सकते आपकी समस्याएं. एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. 30% 2 कंपोनेंट्स है, 30% जो है असाइनमेंट का है और 70% वेटेज जो है. हाँ, इसमें एक चीज मैंने आपको बोलना चाहूंगा कि 40% मार्क्स जो है, मिनिमम 40% मार्क्स यू हैव टू स्कोर फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में. मास्टर डिग्री प्रोग्राम में 40 मार्क एक पेपर में, बोथ असाइनमेंट में भी 40 मार्क्स रखना है, थ्योरी में भी 40 मार्क रखना है, और दोनों मिलाकर के भी 40% मार्क रखेंगे तब जाके वो पेपर क्लियर होता है. हमारा पेपर जो है इंडिविजुअल पेपर का रिजल्ट आता है, ना कि एक बार में सारे पेपर जब क्लियर हो जाएगा तब जाके रिजल्ट आएगा. ऐसा नहीं है. हम लोगों का रिजल्ट पेपर वाइज होता है. आज पेपर वाइज क्लियर हो गया तो रिजल्ट आ गया तो पेपर 1 को अपलोड कर देते, नेक्स्ट डे में पेपर 2, नेक्स्ट थर्ड डे में पेपर 3, इस तरह की चलता रहता है. सेम डे में भी रिजल्ट आ जाता है.
तो और क्या है ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो असाइनमेंट है वो किस तरह की है, वो 2-3 साल का या 2-3 सेशन का क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट जो अवेलेबल होता है मेरे वेबसाइट में। आप लोग डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर फॉर जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है हमारा, टारगेट एग्जामिनेशन होता है जिसमें दिसंबर एंड जून में जो होता है पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किस तरह की है, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न में आया है, उसके कितने क्वेश्चन है, मार्क क्या है, कितने टाइम में, वो सारे डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन में जो है फर्स्ट डिवीजन 60% एंड अबव, सेकंड डिवीजन 50% अबव एंड पास मार्क जो मिनिमम 40% मार्क जो होगा तब जा करके हमारा कंप्लीट होता है। और ये आपका एग्जामिनेशन अपियर होने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भी जमा करना पड़ेगा। वो फॉर्म जो है 2 बार आपको जमा करना पड़ेगा। एक बार जो है दिसंबर में जमा एग्जाम देने के लिए सितंबर अक्टूबर में जमा करना है, और जून के लिए मार्च अप्रैल में जमा करना है। जो लास्ट डेट होता है वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट में आता है। आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के हिसाब से आप लेट फीस, विदाउट लेट फीस, ये सारी चीजें होती है, वहां पे आप देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अंत में मैं ये बोलूंगा कि हमारे कॉन्टैक्ट में जो है रीजनल सेंटर का rckolkata@ignu.ac.in, आप इसी में मेल भेजिए। और इग्नू रीजनल सेंटर का एड्रेस है इग्नू रीजनल सेंटर, विकास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, 4th फ्लोर, सॉल्ट लेक, कोलकाता। पिन कोड है 91 700091। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट है। आपके कोई भी ग्रीवांस, पहले आप स्टडी सेंटर में आपका जो ऑनलाइन क्लासेस होता है उसके टीचर से बात करेंगे, उनसे नहीं होता तो आप स्टडी सेंटर विजिट करेंगे। स्टडी सेंटर में कोऑर्डिनेटर होते हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं, पार्ट टाइम स्टाफ होते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर उनसे नहीं हुआ है तो हमारे पास रीजनल सेंटर में आइए। रीजनल सेंटर में भरपूर कोशिश किया जाएगा आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। अगर यहाँ पे हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं, हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम आपके समस्या को दिल्ली तक जो है भेजेंगे, रेफर करेंगे। तो इसमें भय करने की कोई बात नहीं है। हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जब आप क्लास होता है तो आपका जो टीचर्स को रिक्वेस्ट करिएगा, एकेडमिक काउंसिलर को रिक्वेस्ट करेंगे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उस व्हाट्सएप ग्रुप में 2-3 स्टूडेंट भी एडमिन हो जाए। और स्टूडेंट क्या करेंगे ना, व्हाट्सएप में बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ जो है उनको भी ग्रुप में ऐड करेंगे और उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। ये जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वो सारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम इन डिलीटिंग द मैसेज, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इमीडिएटली शेयर हो जाएगा, आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे तो हम सारे टीचर्स को बोल रखे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप अपने अपने सब्जेक्ट का बनाएं। और आप लोग भी जब क्लासेस होता है तो इनिशिएट लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को बना करके, व्हाट्सएप ग्रुप क्या बनाया है उसका लिंक जो है आप लोग हमारे रीजनल सेंटर कोलकाता को भी दे सकते हैं। एग्जामिनेशन कहीं पे दे सकते हैं, इस बार नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम नहीं दिया तो उसके बाद, ऐसे करते करते आपको 4 साल में आपका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है उसमें आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। बस मैं चाहूंगा कि इतना डिले ना करते हुए आप 2 साल के अंदर अंदर आपका प्रोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड ईयर में आपका प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप ये सारे होता है, तो सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग होते ही आप लोग ये काम स्टार्ट करेंगे तो टाइम भी आपका प्रोजेक्ट सबमिशन हो जाएगा और इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। तो इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आया है हमारे फेसबुक लाइव में, तो मेरे तरफ से ये जो है प्रेजेंटेशन था। अभी जो है आप लोगों को देखेंगे कौन कौन क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगर क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है अभी हम 1 by 1 जो है करते हैं, शुरू से करेंगे। श्रीजा सेन, असाइनमेंट कब तक अपलोड होगा सर? असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है वेबसाइट में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। श्रीजिता रॉय, एज लॉन्ग एज आई कैन बी ए पार्ट ऑफ इन ए ग्रुप कोलकाता रीजन आई एम फाइन फॉर नाउ। ओके, थैंक यू मैडम। निरुपमा पोरिया, ये व्हाट्सएप का क्या दिया है चार्ट, इसमें MSc DFSM का, MSc DFSM के लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है,
आप लोग यहाँ से व्हाट्सएप में क्लिक करके अपना जो है अपने आप को उस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ये कौन है? सात्यकी मुखर्जी, MA साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, रिप्लाई इन दिस कमेंट। अच्छा ठीक है। श्रीदेवी सुरेश, प्लीज मेक ए व्हाट्सएप ग्रुप, आई डू नॉट हैव एन फेसबुक अकाउंट। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ उसके बारे में। आप लोग अपने अपने टीचर से बात करके व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा। MA साइकोलॉजी स्टूडेंट, रिप्लाई। अंकिता अधिकारी, सत्यकी मुखर्जी, प्लीज मेक ए व्हाट्सएप ग्रुप एज आई एम नॉट एक्टिव इन फेसबुक। ओके, MA साइकोलॉजी स्टूडेंट, रिप्लाई। शाश्वती साहा, I have created a group only for July 2023 Ashutosh College MAPC. If anyone want to join, inbox me. Okay. Thank you मैडम शाश्वती, आपने अच्छा काम किया है। नेक्स्ट जो है सेंड भैरव गांगुली मास्टर्स इन जियोग्राफी ग्रुप लिंक। हम लोग ग्रुप नहीं बनाते हैं, वो टीचर जो है वही ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। रुद्र दे, MAPC अंडर मुरलीधर गर्ल्स कॉलेज। ठीक है। तीस्ता मंडल, एनी ग्रुप फॉर पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स। आपको हमने अभी अनाउंस किया है कि जब टीचर है उनको आप रिक्वेस्ट करेंगे, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। सुचित्रा दे, फॉर स्टडी मटेरियल रूम टू कॉन्टैक्ट। देखिए एक चीज और है, कॉमन प्रोस्पेक्टस में हमने यूनिवर्सिटी ने एक दिया हुआ है, टू हुम कॉन्टैक्ट फॉर व्हाट। स्टडी मटेरियल के लिए रजिस्ट्रार MPDD, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, MPDD रजिस्ट्रार, REGISTRAR, रजिस्ट्रार M विदाउट एनी गेट, MPDD@ignu.ac.in। अजय दास, ये एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। नजरुल अहमद जमादेर, वी हैव नॉट गॉट नंबर ऑफ स्टडी मेट्स। क्या गॉट नंबर ऑफ स्टडी सेंटर? नंबर ऑफ स्टडी सेंटर मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। आपका स्टडी सेंटर का जो है जहाँ पे भी होगा वहाँ का एक कोड होगा। हमारे वेबसाइट में स्टडी सेंटर का कोड लिखा हुआ है, और आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस में भी आपका स्टडी सेंटर का डिटेल्स दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। सुवर्ण रॉय, हेलो सत्य की प्लीज ऐड में। अच्छा, ये MAPC का ग्रुप में ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, आई वुड लाइक टू, ये कौन है? श्रीदेवी, आशुतोष कॉलेज। ठीक है, आशुतोष कॉलेज में आप बना दीजिएगा। शाश्वती प्लीज ऐड में। ठीक है, ये MAPC का वाला जो है। अन्वेषा पुरके, क्या है ये? इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप और MSW? आप बनाइए ना व्हाट्सएप ग्रुप, MSW बनाइए, अन्वेषा आप बनाइए और बाकी लोगों को ऐड करिए। अभय कुमार, असाइनमेंट डेट फॉर सेकेंड ईयर इन जुलाई 2023। यस, असाइनमेंट डेट फॉर सेकेंड ईयर जुलाई 2023। सेकेंड ईयर जुलाई 23 के लिए देखिए, अगर ऐसा ये एनुअल सिस्टम है तो आपको जून 2024 मतलब एग्जाम देंगे तो उससे पहले अप्रैल में या मई में आपको जमा करना है। जो लास्ट डेट होगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होता है लास्ट डेट, उसमें जमा करना है। आपके स्टडी सेंटर में जमा होगा ऑब्वियसली। संकल्प आनंद, RC रीजनल सेंटर विकास भवन। ये रीजनल सेंटर विकास भवन, इंग्लिश सिस्टम प्रोग्राम। एक्सक्यूज मी सर, वेयर इज द सब्जेक्ट LMS अवेलेबल? नहीं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो दूसरी जगह में है। आप अपना जो है सारे यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप यूनिवर्सिटी जेसॉफ गोम्स ने पूछा है कि वेयर इज आवर सब्जेक्ट LMS अवेलेबल। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है बट अवेलेबल है, बाकी चीजें में अवेलेबल है। MSc CFT group under Muralidhar Girls College. Yes, it is there. You can add. If not, for July 2023, you request your coordinator to create and join the group.
सौम्यजीत रॉय चौधरी, फूड एंड न्यूट्रिशन एमएससी का एनी ग्रुप। आप पूछिए, आप अपने स्टडी सेंटर में जाकर के बात करिए और उनसे पूछिए कि भाई कौन सा ग्रुप है ग्रुप तो है, निश्चय है। Deposmita, will there any induction in the study center? No, there will be no induction meeting in the study center. You have to go through our. We have uploaded different induction meeting video in our website. You can watch that. प्रैक्टिकल MSc का प्रैक्टिकल जो है वो इंद्रिला चक्रवर्ती पूछा है, ये जब होगा तब बताया जाएगा। सर स्टडी मटेरियल शॉर्ट बुक्स मिले हैं। अच्छा, शॉर्ट बुक्स मिले हैं, उनका एग्जाम दे पाए हैं, क्या लिखा है? आई एम एनरोल्ड इन MAPC फॉर फर्स्ट ईयर, डू आई हैव टू कंप्लीट द इंटर कोर्स? देखिए, फर्स्ट ईयर कोर्स में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये कौन है? I am enrolled in MAPC program, that is first year term. Do I have to complete the entire course by this time, or do I have to re-register as you have mentioned? Yes, you can before completion. आप सेकेंड ईयर में पास होना नहीं होना वो बात छोड़ दीजिए, आप सेकेंड ईयर में री-रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और धीरे धीरे सेकेंड ईयर के बीच में जो एग्जामिनेशन होता है, उस बीच में एग्जामिनेशन जो होता है, सेकेंड ईयर के बीच में जो एग्जामिनेशन, क्या नाम है? त्रिशा मंडल आपका ही आंसर में दे रहा हूं। तो ये जो फर्स्ट ईयर का कंप्लीट होने से पहले आप सेकेंड ईयर का एडमिशन ले लीजिए। सेकेंड ईयर के बीच में जो एग्जाम होता है वो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे पाएंगे आप। अगर आप फर्स्ट ईयर अभी नहीं दे पाते हैं तो सेकेंड ईयर के बीच में, जैसे आपने MAPC का एडमिशन लिया है, MAPC फर्स्ट ईयर होगा जून 24 में। जून 24 में अगर आप एग्जाम नहीं दे पाते तो दिसंबर 24 में जो सेकेंड ईयर का बीच में जो होता है उसमें आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे पाएंगे। सर व्हेन विल द प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट फॉर MSc FSQM? हाँ, MSc FSQM जुलाई 2023 हम लोग डिसाइड कर रहे हैं अभी। जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। जुलाई 22 का भी हो गया है, जनवरी 23 का चल रहा है और उसके बाद है जुलाई 23 का चलेगा MSc FSQM का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेस्पेक्टिव। अच्छा, एक चीज और है, MSc FSQM का स्टडी सेंटर जो है 2800 बनाया गया है। सारे स्टूडेंट जो है ट्रांसफर हुए हैं 1032 2800। तो ऑल द लर्नर्स आर रिक्वेस्टेड, ऑल द लर्नर्स ऑफ PGD FSQM आर रिक्वेस्टेड नॉट टू विजिट 28103 स्टडी सेंटर एनिमल हस्बेंड्री जो है इंस्टीट्यूट, वहां पे नहीं जाना है, वहां पे ये प्रोग्राम नहीं है। वो लोग थोड़ा सा ये करते कि हमें आके डिस्टर्ब करे स्टूडेंट, ठीक है? नहीं है। मेल MPTD स्टिल नॉट। अच्छा, आयुषी चैटर्जी, मेल MPTD स्टिल डिड नॉट रिसीव SLM, व्हाट टू डू नेक्स्ट? आप रिमाइंडर भेजते रहिए, 2-3 रिमाइंडर भेजिए, वो भेजेंगे। देन देखिए 24 किलोमीटर जो है आपके कोलकाता से शुभांगी गोयल, वो ठीक है। 24 किलोमीटर, बहुत सारे लोग पुरुलिया बांकुड़ा से भी आते हैं, नॉर्थ बंगाल से भी आते हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है 24 किलोमीटर। बट हाँ, ये है कि आपका जो है डिस्पैच अगर हमारे पास आता है तो हम आपको यहाँ से स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा सकते हैं। अगर नहीं आता है हमारे रीजनल सेंटर में, ये आपको कलेक्ट करना है, दिल्ली को लिखना है, वो दिल्ली डायरेक्ट भेजेंगे। तो दोनों मोड से ही है अभी। सर MHI हिस्ट्री इज सेमिस्टर नहीं, हिस्ट्री जो है ये एनुअल सिस्टम है, 1 साल के बाद एग्जाम देंगे। कौन बोला ये गिरीश कुमार। हाँ, ये है। एनी ग्रुप
फॉर भैरव गांगुली कॉलेज जियोग्राफी, नहीं ग्रुप आप लोग बनाएंगे, राम प्रसाद मंडल ग्रुप बनाएंगे आप लोग भैरव गांगुली कॉलेज में एमएससी ज्योग्राफी के लिए, आप अपने ग्रुप बनाइए और ये सारे टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी जोड़ सकते हैं। व्हेन विल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट फॉर एमईजी, देखते हैं अभी जनवरी में ही स्टार्ट करेंगे, मिड जनवरी के बाद जो है ऑनलाइन क्लासेस जितने भी है स्टार्ट हो जाएगा। या 15 जोसेफ गोम्स लिखा है आफ्टर 15, या ऑब्वियसली आफ्टर 15 जो है डेफिनेटली स्टार्ट होगा, उससे पहले भी हो सकता है। देवारती दिस ईयर असाइनमेंट डिड नॉट कम येट, नहीं असाइनमेंट रिफ्लेक्टेड है, कुछ कुछ में नहीं है, वो आ जाएगा अभी। बलिसा डिसोजा आपको भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एमएपीसी का, थोड़ा सा वेट करिए। Let us make an MPS group. Yes, you can join Shivangi Mukherjee. You can make a group and join add all the students of your group of your class. एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के लिए एक ग्रुप नंबर दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देन व्हेन स्टिल एसएलएम एमएलआईएस, अच्छा एमएलआईएस का थोड़ा सा जो है होगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा होगा। ये लिखा है श्री Rinjita Roy, sir, my admission confirmation happened in December. This semester is the first semester program. देखिए दिसंबर में कंफर्म हुआ तो क्या हुआ, आपका जो है ये पता नहीं है ये कौन सा प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, बट ये है कि कुछ एक जैसे एमकॉम है वो सेमिस्टर सिस्टम हो गया है, कुछ एक और प्रोग्राम है सेमिस्टर सिस्टम में, बट सारे नहीं है। तो जो जो प्रोग्राम में सेमिस्टर है आप लोगों का फर्स्ट सेमिस्टर खत्म, सेकंड सेमिस्टर में रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। और एनुअल सिस्टम जो है अभी मार्च अप्रैल से चलेगा, री रजिस्ट्रेशन एग्जाम जो है दे सकते हो, अभी जो रह जाता है वो जून में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। या असाइनमेंट सबमिशन के ऊपर जो डेट दिया हुआ है, आप एक बार में भी सबमिट कर सकते हैं, वो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स, इसमें दिया होगा भाई कौन सा डेट में क्या सबमिट करना है, वो सब दिया होगा, वेबसाइट में अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा। नीलवान चक्रवर्ती, हाँ अनिंद्र क्या लिखा है, आर द प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर फर्स्ट ईयर एमएससी एफएसक्यू, यहाँ पे देखते हैं। मान प्रोग्राम के लिए जो है देखिए प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो है अभी प्रैक्टिकल क्लासेस अभी नहीं, थोड़ा सा 1 महीने का टाइम लगेगा और फिर प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। मान सेमिस्टर सिस्टम मान नहीं है, मान जो है एनुअल सिस्टम है, मान एनुअल सिस्टम है ना, तो आप लोगों को जो एनुअल सिस्टम है वो एनुअल सिस्टम ही ये करना है। हाँ अनिर्बाण चक्रवर्ती, आपको 4 बुक्स मिला है एमए एसएस के लिए, अभी 9 बुक्स टोटल है, 5 बुक्स नहीं मिला है, वो आप मेल भेजिए रजिस्टर mpdt@ignou.ac.in, आपको भी तुरंत मिल जाएगी। स्टडी सेंटर एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में जगत बंधु कॉलेज अंदुल, वहां पे
उन्होंने लिखा है, श्रीदेवी लिखा है, आई आस्क फॉर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल बट नाउ आई वांट टू रिक्वेस्ट हार्ड कॉपी। देखिए ये प्रोसेस जो है बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें हार्ड कॉपी में एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, उसको एमपीडी सेक्शन में भेजना है, वहाँ से अप्रूवल होगा तब जाके होगा, अदरवाइज आप डाउनलोड करने के लिए आप यू आर फ्री। एमएपीसी प्रोजेक्ट अर्पिता दे एमएपीसी प्रोजेक्ट कब सबमिट करेंगे? ये एमएपीसी प्रोजेक्ट का सबमिशन जो है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, जब आप टाइम देंगे असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसी टाइम को ही होता है। जैसे इस बार का सेकेंड ईयर का दिसंबर 30th लास्ट डेट था, ठीक है। एमएससी फिजिक्स सेमिस्टर, ज्योग्राफी एनुअल सिस्टम है, एमएससी ज्योग्राफी एनुअल सिस्टम है। और विद्यासागर वुमेन्स कॉलेज का टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर, देखिए कॉन्टैक्ट नंबर टीचर का जो है वहीं पे जाके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। उनका बहुत सारे टीचर्स होते हैं और बहुत सारे टीचर्स का नंबर जो है देना संभव नहीं है। तापसी चक्रवर्ती N1 फ्रॉम एमएससी फिजिक्स कोर्स मैंने आपको बोला है कि थोड़े से स्टडी मटेरियल मिला है तो आपको दूसरों के बाकी के लिए जो है आपको मेल भेजना है। हिस्ट्री में सब दीपिका गांधी, व्हेन विल आई गेट स्टडी मटेरियल? अरे स्टडी मटेरियल तो दिल्ली से आता है ना, स्टडी मटेरियल हमारे पास आएगा तो हम तुरंत दे देते हैं। अगर हमारे पास नहीं आया, डायरेक्ट दिल्ली में आया तो दिल्ली से आपके घर में आया तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कब लेंगे, कैसे करेंगे? एमएपीसी का सेकंड सेमेस्टर क्लास शेड्यूल कब मिलेगा? एमएपीसी का सेकंड सेमेस्टर का क्लास शेड्यूल जल्दी मिल जाएगा, मैंने बोला हूँ बनाने के लिए, वो जल्दी तैयार कर देंगे। नूरुल अहमद जमादार, इफ एनीवन एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस प्लीज गिव कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, गोपाल सामंत, हाउ टू कॉन्टैक्ट with the teacher of MA in psychology स्टडी सेंटर वुमेन्स कॉलेज कलकत्ता। देखिए कांटेक्ट करने के लिए एक बार जो है सैटरडे संडे आपको विजिट करना है हमारे स्टडी सेंटर, वहाँ पे जाके कौन टीचर पढ़ाएंगे कौन सा सब्जेक्ट को, वहाँ से टीचर का नंबर लेकर के आप या फिर डायरेक्ट बात कर सकते हैं टीचर के साथ, ठीक है। सेकेंड सेमिस्टर का शेड्यूल कब मिलेगा? मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा मैडम, अभी जनवरी में ही हम करेंगे। हाँ, असाइनमेंट सबमिशन एमएससी एफएसपीएम का असाइनमेंट प्रैक्टिकल सब यहीं पे होगा, या फिर जहाँ पे बोलेंगे हम उधर ही जाना है। बट असाइनमेंट प्रोजेक्ट जो भी जमा करना है वो इधर ही रीजनल सेंटर में होगा, बिकॉज रीजनल सेंटर में ही आपका एक स्टडी सेंटर है 2800, उसी के अंदर आप लोगों को डायरेक्ट ले लिया गया है। आई हैव एनरोल्ड, ये कौन है? राम प्रसाद मंडल, आपको तो मैंने बताया। आई हैव एनरोल्ड जुलाई 23 फॉर एमएससी जीजी, व्हेन विल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट? ऑलरेडी जो जनवरी का चल रहा है आपका जो है मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर में ही चल रहा है, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में ही है, तो फर्स्ट ईयर जैसे एंड के वजह स्टार्ट हो जाएगा। जितेंद्र कुमार साहानी लिखा है, सर वेयर एमएलआईएस इंटर्नशिप इज कंपल्सरी?
यस, MLIS इंटर्नशिप कंपलसरी है, और इफ यू सिलेक्ट देन बाद में यस आपको बता देंगे। इफ यू सिलेक्ट योर, इफ यू हैव सिलेक्टेड योर इंटर्नशिप, क्योंकि वहाँ पे MLIS का इंटर्नशिप का कंपलसरी है, तो आपको उसी में ही कंप्लीट करना पड़ेगा, उसी फर्स्ट ईयर में ही। मतलब आपको नवंबर में आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है, अभी टाइम है, आप मार्च अप्रैल तक जो है स्टार्ट खत्म कर सकते हैं, और नवंबर से सॉरी मई तक जो है आप अपलोड भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन लिंक दे सकता है, नहीं तो आपको बाई पोस्ट जो है भेजना पड़ेगा इंटरव्यू करने के लिए रिपोर्ट। रेफरेंस फॉर इंटर्नशिप नहीं ऐसे, देखिए रेफरेंस के लिए जब आपका इंटर्नशिप का रेफरेंस जो है जब आप जाएंगे तब हमारे से ले सकते हैं, नहीं तो स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि खाली स्टडी सेंटर से लेंगे या रीजनल सेंटर से लेंगे, आप दोनों जगह से ले सकते हैं। हाउ टू गेट टीचर नंबर, टीचर को रिक्वेस्ट करिए ना, टीचर को रिक्वेस्ट करिए कि सर हमें नंबर दे दीजिए आपको ग्रुप में, या फिर आप ग्रुप बना दीजिए, करेंगे इस बार, हमने बोला है सबको करेंगे, ठीक है। MAPC का सेकंड क्लास कितने पर मिलेगा, असाइनमेंट स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे प्लीज बताइए। अच्छा, असाइनमेंट का स्टेटस कैसे चेक करें मैं बताता हूँ। अब आप इग्नू का वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे www.ignu.ac.in में जाएंगे तो वहाँ पे तीसरा कॉलम जो है वो है स्टूडेंट जोन। तो स्टूडेंट जोन से जा करके आप स्टूडेंट का जो डिटेल्स देखेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस जब डिटेल्स देखेंगे तो लास्ट में आपका असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस है। आपने जब असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस चेक करेंगे मतलब, तब आपका कौन सा डेट में कौन सा असाइनमेंट हमारे यहाँ से मार्क चला गया दिल्ली को, वो ये करेगा, तो वहाँ पे फिर अपलोड हो जाएगा, तो वहीं पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। और एक है बात, आप उसी मार्क को डायरेक्ट ग्रेड कार्ड में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप स्टडी सेंटर में विजिट करेंगे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बता देगा ये, आप जाके फिर वहाँ पे कोऑर्डिनेटर जो है या असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। सौमिक सरकार, कैन यू प्लीज ऐड माई नंबर। देखिए आप लोग जब नंबर लिखते हैं तो कौन सा प्रोग्राम में प्रोग्राम कोड क्या है और कौन सा एनरोलमेंट नंबर है, नहीं तो कैसे पता लगेगा कौन किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ थोड़ी ना जुड़ेंगे आप। मान लीजिए एमएस साइकोलॉजी MAPC है, आप लिखेंगे MAPC एनरोलमेंट आपका MAPC मोबाइल नंबर, तब जाकर के कोई MAPC स्टूडेंट आपको ऐड करेगा। अगर आप खाली रैंडमली आप एनरोलमेंट नंबर लिख के बोलोगे ऐड करो, तो वो पॉलिटिकल साइंस वाला ऐड कर लेगा, तो आपको क्या फायदा मिलेगा, समझ रहे। तो उसी हिसाब से करना है। चार्ट बॉक्स में तो बहुत सारे लिंक दे दिया है लोगों ने, आप ऐड कर लीजिए मेल उसमें, उनका उसमें डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और तो मैं सभी लर्नर्स को थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके बाकी स्टूडेंट्स के पढ़ाई को आसान करने के लिए लिंक भेजा है। और टाइम जैसे जैसे आप टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे उनके नंबर लेकर के भी आप उनका जो है ये कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड कर सकते हैं उनको। सर आई हैव विजिटेड, क्या लिखा है, आई हैव विजिटेड स्टडी सेंटर 2157 बंकिम, अच्छा हाँ बंकिम चंद्र कॉलेज नईहाटी में, दे आर सेइंग नो क्लास विल बी अरेंज फॉर हियर। यस, MASS के लिए कोई क्लास नहीं होगा वहाँ पे, बट RC के थ्रू से ऑनलाइन क्लासेज जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगर इसमें भी कम स्टूडेंट होंगे तो नोडल RC है ऑल ओवर इंडिया में, किसी भी एक RC वहाँ से फिर क्लासेस होगा, आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। इस तरह की ये है MSc GG, अरे इतना स्पीड चलता है ना ये। हाँ, MSc GG ग्रुप भैरव गांगुली कॉलेज में, ठीक है, मैंने बता दिया, वहाँ पे जो भी टीचर्स होंगे उनसे बात कर लीजिए एक बार। यस, नाउ दे गॉट द पॉइंट, नंबर प्रोग्राम कोड के साथ जो है नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर, तो फिर वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स, और कोई कुछ बोलना चाहेगा स्पेसिफिक
एकता सिंह सर मुरलीधर गर्ल्स कॉलेज में संडे। अरे भाई सब जगह में संडे क्लासेस होता है, क्यों नहीं होता है? ठीक है, आप लोग जाके टीचर्स को बोलिए कि भाई हमारा क्लास चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्लास तो डेफिनेटली संडे में ही करने के लिए बोला हूँ। इवन थियोरी क्लासेस भी जो है अगर परमिशन देता है तो अभी ऑनलाइन चल रहा है, जब आप होगा तो आप लोगों को बता देंगे। अनिंद्रिला क्या लिखा? प्लीज आंसर वन ऑफ द क्वेश्चन। आंसर वन ऑफ वन is not able to appear in. Please answer one is not able to appear in tournament December exam 23 can. Yes मैडम, मैंने आपको कई बार बोला हूँ अनिंद्रिला चक्रवर्ती, आप अगर दिसंबर 23 में एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो आप जून 24 के लिए जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसमें फॉर्म फिलअप करेंगे। पैसा लगेगा, आपका पैसा एडजस्टमेंट नहीं होगा ना रिफंड होगा। ये जो 23 वाला पैसा लगेगा, फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। देयर इज नो बैक पेपर, सप्लीमेंट्री पेपर, ये सब बेकार की चीजें हमारे पास यहाँ पे नहीं है। हम लोग 2 बार एग्जाम करते हैं, इस बार पेपर नहीं दे पाए तो नेक्स्ट टाइम देंगे, बात खत्म। क्लियर? और ये फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन आप जून 2024 में देंगे, जुलाई 20 नहीं होता है, जून 2024 होता है, जून में देंगे। और सेकेंड ईयर का दिसंबर में दे सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर का जून में भी मतलब छूट गया, नहीं दे पाए, तो सेकेंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर भी दे सकते हैं। उसमें एक ही प्रॉब्लम होता है, कई बार पेपर जो है ओवरलैपिंग हो जाता है, 2 पेपर एक दिन में आ जाता है, तो एक पेपर छोड़ के नेक्स्ट टाइम देंगे। फिर जो 2.5 साल में जब आपका एमए का टाइमिंग 2.5 साल का होगा, तो 2.5 साल में जो जून दिसंबर में एग्जाम होगा तो उस टाइम देंगे, या जून में एग्जाम होगा तब देंगे। ये है इस तरह। यस, एमएससी फिजिक्स बुक जो है, क्या लिखा है? फिजिक्स तो कहाँ से लगे हो? एमएससी फिजिक्स का कोई बोला था, अभी पूछा था। एमएससी फिजिक्स बुक फ्रॉम रीजनल सेंटर कोलकाता। कहाँ से लगे? तो अच्छा यहाँ पे सर, कैन आई गेट माई एमएससी फिजिक्स बुक्स फ्रॉम? देखिए, आपका बुक जो है अगर लोकल अब है कोलकाता के यहीं पे रीजनल सेंटर के आसपास है तो आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि ये नया प्रोग्राम है, हो सकता है दिल्ली से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करें स्टूडेंट्स को, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अगर आएगा हमारे पास तो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2 बार भेजा है, मैंने बोल दिया। एमकॉम कोर्स का आशुतोष कॉलेज में क्लास होगा। एमपीए कोर्स के क्लास जो है, देखिए ये ऑनलाइन का ही होगा, क्लास तो वहाँ पे नहीं होगा, स्टडी सेंटर में नहीं होगा। ये कौन बोले? सिमी सिंह विश्वास। बट ये क्लास होगा, जब भी क्लास होगा हम ऑनलाइन लिंक देंगे, साथ में ऑनलाइन का मेल भी करेंगे, डेट भी देंगे, वेबसाइट में अपलोड भी कर देंगे। ठीक है। आशुतोष कॉलेज में देखिए, कॉलेज वाइज जो भी टीचर है, स्टूडेंट्स है, वो आपस में डिस्कस करके अपना नंबर शेयर करके अपने आप को जो है ऐड करवा लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, तभी आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होता है, बहुत सारी परेशानी बढ़ जाती है और बाद में आप लोगों को ही परेशानी होती है। और कौन है? स्पीड चलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर। और कौन है? और एक पहले आया था रूल पेपर। यस 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 यस। देखिए, रोलिंग पेपर हो या प्लेन पेपर हो, आप लोग जब असाइनमेंट बनाते हैं तो एक काम करिएगा, असाइनमेंट यहाँ पे ना, फिर इधर मुड़ के देखना पड़ेगा, इधर साइड में हो रहा। जब आप असाइनमेंट लिखते हैं तो आप लोग असाइनमेंट का कागज साइज जो है एक जैसा होना चाहिए। ये ऐसे ना होना चाहिए कि भाई एक पेज जो है आपका A4 में है, दूसरा पेज कुछ दूसरे साइज का है, फिर तीसरा पेज कुछ और साइज का है, फिर वो गड़बड़ हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो एक पेज का जो है एक ही टाइप का पेज जो है आपने देना है।
A4 है तो A4, रोलिंग पे जो भी पेज है उस पेज देना। एक असाइनमेंट, दूसरा असाइनमेंट हो तो बड़ा हो छोटा हो, मतलब उस पेज A3 में मान लीजिए लीगल साइज में एक पेपर का लिख दिया, दूसरे में दूसरा पेपर का लिख दिया, ये भी ऐसे हो सकता है। काइंडली अपडेट 30th कन्वोकेशन। देखिए पुष्पिता 30th कन्वोकेशन 37th कन्वोकेशन अभी नहीं हुआ, अपडेट क्या करना है, अभी तो डेट नहीं हुआ ना, तो डेट जब होगा तो बताएंगे आपको। मौलाना अबुल कलाम आजाद के स्टडी सेंटर में नहीं, वहाँ पे नहीं होता। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अच्छा ये 2810 में तो है, 2810 में है, एक और जगह है वहाँ में नहीं है। और कोई है बस, और नहीं है, और लास्ट में चलेगा, चलो कोई बात नहीं। 40% क्या? हाँ एग्जाम देखिए, मास्टर डिग्री में कोई भी सब्जेक्ट पेपर जो है वो मिनिमम 40% मार्क रखेंगे तो पास मार्क है। तो मिनिमम 40% मार्क मतलब ये खाली असाइनमेंट एंड थ्योरी दोनों को मिला करके नहीं, इंडिविजुअली असाइनमेंट में भी 40% मार्क रखेंगे आउट ऑफ 30, और इसमें थ्योरी में भी 40% मार्क रखेंगे, सच्चो ठीक 28 मार्क रखेंगे इसमें, है ना, और इसमें थ्योरी में है 12 मार्क रखेंगे, तो टोटल 40 मार्क हुआ ना, मतलब 40% मार्क, तो दोनों को मिलाकर के 40 होगा तब जाके पेपर क्लियर होगा, अदरवाइज पेपर जो नॉट कंप्लीटेड आएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स कंप्लीट ऑन द स्टडी सेंटर रूल्स। क्या लिखा है तो ये नहीं, स्टडी सेंटर का रूल कुछ नहीं है असाइनमेंट सबमिशन करने में, आपके अपने रूल होना चाहिए। बस ये है कि अगर ऐसा ये का A4 साइज का पेपर ऐसे ये बना दे तो A4 साइज का बनाए, और थोड़ा सा लंबा ऐसे लीगल साइज का बनाना तो लीगल साइज का बनाए, बट एक ऐसे नहीं कि एक पेज छोटा एक पेज बड़ा और 10 पेज का स्टेपल करके दे दिया, ऐसे नहीं करना। और जब स्टेपल करते हैं तो अच्छी तरह ये साइड में मार्जिन साइड में स्टेपल कर दीजिए, ताकि पढ़ने के लिए जैसे आंसर स्क्रिप्ट होता है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं एक कोने में डाल दिया, पेज पढ़ते फट गया निकल गया, फिर बाद में बोलेंगे हमारा पेज कहाँ है, मार्क कम मिला है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए ना। एक सिस्टमेटिकली जो मास्टर डिग्री स्टूडेंट जैसे बिहेव करता है, जैसे उनका रिफ्लेक्शन होता है एक्टिविटीज, हाँ भाई ये मास्टर डिग्री के स्टूडेंट ही वो ऐसे बनाया, ऐसे करिए। MAPC ग्रुप जो है बना लीजिए, कौन है, सुलग्ना बंदोपाध्याय, प्लीज आप खुद ही बना लीजिए MAPC का ग्रुप, और टीचर्स जो है स्टडी सेंटर में है उनसे दोनों को मिलाकर के बना लीजिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चन है। सर बुक्स तो मिल गया, बट किस सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कैसे पता चलेगा? अरे भाई किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना नहीं है, हम तो बोलते हैं प्रांजल बर्नवाल, प्रांजल जी आपको सारे सब्जेक्ट को, सारे पेपर को A to Z, पेपर 1 मतलब फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक पढ़ना है, हम तो यही बोलेंगे। तो हम लोग भी जब स्टूडेंट थे ऐसे ही क्या करते थे, टेक्स्ट बुक जो है पूरा पढ़ते थे, तो आप लोग भी ये वन काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक ही है, इसको पूरा पढ़िए। जब एग्जाम आ जाएगा सिलेक्ट करके पढ़ना है तो अपने आप को समझ आ जाएगा भाई कौन सा पेपर इंपॉर्टेंस है, कौन सा पेपर नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए, उसी हिसाब से अगर क्वेश्चन पैटर्न ऐसे है तो आपको किस तरह के पढ़ना है उसको देखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली एंड केयरफुली। आई वुड लाइक टू विश all the learners, all the family member of IGNOU, I can say. Now you become a family member of IGNOU, because for your kind information I would like to give you one information that IGNOU on roll 38 लाख स्टूडेंट ऑन रोल है, और 35 लाख स्टूडेंट जो है ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो थोड़ा सा तो होता है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है
अपना टाइम निकाल करके इग्नू का वेबसाइट देखिए, टाइमली पढ़ाई करिए, टाइमली एग्जाम दीजिए, टाइमली असाइनमेंट जमा करिए। और ये जो दौर है, ये जो आपका जो सफर है इग्नू के साथ, अपने करियर के साथ, ये बहुत एक सुगम हो, सुफल हो। अच्छे से आप लोग पढ़े, अच्छे से आप लोग आगे बढ़े, आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर है। इसी शुभकामनाओं के साथ ये जो 2024 का नववर्ष है, इंग्राजी नववर्ष है, उसके लिए जो है आप सभी को जो है शुभकामनाएं है, बधाई है। और आप लोग अच्छे से पढ़े और ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ इग्नू परिवार की ओर से, इग्नू रीजनल सेंटर की ओर से, मेरे पर्सनल मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई ओन, I would like to thank you all for patient hearing me, patient listening me. Thank you very much.